নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্যনৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। অজানা সুরে গুলাবে হাওয়াতে নাচাবে মন, তোমার জন্য পথ চেয়ে তুমি বসবে হাতে হাত রেখে, তারারা গাইবে যে গান। তুমি বসবে হাতে হাত রেখে, তারারা গাইবে যে গান। আমি আবার কাঁদবো হাসিতে, ভোলাতে যে সব অভিমান। তোমার জন্য পথ मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम में एक स्पेशल अट्रैक्शन डाले हैं, आमी रविंद्रनाथ पोस्टर लॉन्चिंग प्रोग्राम, जो कोलकाता के विभिन्न हॉल में 26 मार्च को रिलीज हो रही है। हमारे साथ हमारे आमी रविंद्रनाथ की पूरी वर्किंग टीम यहाँ है और मैं लायंस क्लब और कोलकाता मैग्नेट के सभी सदस्यों को वोमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड और वोमेन्स इंटरनेशनल डे को याद करने के लिए हार्दिक बधाई हो। तो तुम मैंने नारी जीवन को ही समर्पित मैं कर रहा हूं। हो तुमको मुबारक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कि तेरे होने से बने मेरे गीत सरस, तू अपने चाहने वालों पे खुल के बरस, कि तुझे देख रह जाए हर कोई तरस। आगे जो कामना है, महके तेरे अधरों का सुमन और भी ज्यादा, चमके तेरी रुखसार की लाली और भी ज्यादा, दहके तेरी शोक जवानी और भी ज्यादा, और महके तेरा चाहने वाला और भी ज्यादा।
वोमेन्स डे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो यूं ही निकल जाते हैं, कौन याद करता है पिंजड़े में बंद पक्षियों को? याद तो वो आते हैं जो पिंजड़े छोड़ उड़ जाते हैं। हमारे बीच हमारी प्रोडक्शन हाउस की जानी मानी हस्तियां, रोशनी, हमारी फिल्म की एक्ट्रेस जयश्री, हमारी एसोसिएट्स, और आमिर रविंद्रनाथ के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ये हम लोग का प्रोडक्शन हाउस का छठा फिल्म है, छठा फीचर फिल्म, म्यूजिक वीडियो एल्बम, और हम लोग शॉर्ट फिल्म तो काफी किए। और हम लोग का फिल्म एक मैसेज ओरिएंटेड रहता है, साफ सुथरा फिल्म करते हैं जो फैमिली के साथ बैठकर देख सके। हम लोग कोलकाता दत्त किए, चारुलता किए, आपका दर्शन किए थे, छौ 1 छौ 2, उसके बाद छठा हमारा आमिर रविंद्रनाथ है। इसके बाद 2 फिल्म हमारे फ्लोर में है, एक है पाथे पंचाली, एक है नील दर्पण। मैं लायंस क्लब के तरफ से या अपने ही प्रोडक्शन हाउस की तरफ से सभी को इन्वाइट करना चाहूंगा कि जो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जिनकी भी थोड़ी भी इच्छा है, वो हम लोग दिल खोल कर उसको आमंत्रित करते हैं। ফিচার ফিল্ম আমরা বানিয়েছি এবং আমাদের নতুন ছবি 26শে মার্চ রিলিজ করতে চলেছে আমি রবীন্দ্রনাথ। এটা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের 30টি সিনেমা হলে আসছে, মানে সিঙ্গেল প্লেক্স এবং মাল্টিপ্লেক্স সহ। মানে করোনায় আমরা পুরোপুরি জর্জরিত হয়ে গেছিলাম, তারপরে অনেক সাহস নিয়ে আমরা এই ছবি দর্শকের সামনে আনতে চলেছি। আমাদের ছবির হিরো প্রসেনজিৎ দে। আচ্ছা, আমি একটু বলে দিই সকলের, আমাদের ছবির হিরো প্রসেনজিৎ দে। প্রসেনজিৎ দেও কিছু বলবে। আমি আমাদের টিমের সকলের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সঙ্গীত পরিচালক প্লাস আমাদের প্লেব্যাক সিঙ্গার রুপি মিশ্র শ্যালা, সৌম্যকান্তি আমাদের প্লেব্যাক সিঙ্গার। আচ্ছা, আমাদের প্রবীণ অভিনেত্রী সীমান্তি নন্দী, সুপর্ণা আমাদের অভিনেত্রী। আচ্ছা, অনন্যা সাহা আমাদের আরেকজন গায়িকা, সুস্মিতা। দর্শক বন্ধুরা, সবার প্রথমেই বলি যে আপনারা এখানে কষ্ট করে এসছেন, আমাদের এত ভালো সময় আমাদের সাথে আপনাদেরকে পেয়েছি, তার জন্য মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। অ্যান্ড সেকেন্ড, আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমার ডিরেক্টরস বিশ্বজিৎ ঘোষ অ্যান্ড প্রসেনজিৎ ঘোষকে। আজকে তারাই আমার প্রেরণা, তার জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথ। আর থার্ড, আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের ডক্টর অরুণ কুমার রাজকে। আজকে ওনার মাধ্যমেই আপনাদের কাছে সিনেমাটা এত বড় পর্দায় যাচ্ছে, ঠিক আছে? তার জন্য ওনাকেও মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এবং লাস্ট আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমার প্যারেন্টস। আমার প্যারেন্টসের আশীর্বাদ আজকে আমার সাথে আছে বলেই, তাই জন্য আমি রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক, তো রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বলতে গেলে এটাই বলবো যে এটা তো মানে একটা অনেক বড় সাবজেক্ট, একটা গ্রেট লেজেন্ডের চরিত্র। তো এটা একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম, কিন্তু দুই দাদার প্রেরণায় এবং
তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি অনেক স্টাডি করি, আমি লাইব্রেরি ওয়ার্ক করি, শান্তিনিকেতন, তারপরে হচ্ছে জোড়াসাঁকো, সব জায়গায় যাই, গিয়ে অনেক বেশি স্টাডি করে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখলাম ওনাকে বোঝা মানে তো একটা সমুদ্রের মতো, যেটা হয়তো আমার সারা জীবনটাও কম পড়বে। তাও যতটা আমি নলেজ গ্যাদার করলাম সেটা দিয়ে কবিগুরুকে প্রণাম করে আমি কাজ শুরু করলাম। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, বইটা দেখতে আসবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর কি, দ্যাটস অল। নমস্কার, আমি রবীন্দ্রনাথ এই ফিল্মটির ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ দা, প্রসেনজিৎ দা, ওনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই ছবিটাতে প্লেব্যাক করানোর জন্য, এবং প্রযোজক ডক্টর অরুণ কুমার মহাশয়, ওনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, এবং সকল টিম মেম্বার্সদের, সকল প্লেব্যাক সিঙ্গার সতীর্থ যারা আমার, সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আশা করব আপনারা সকলেই এই সিনেমাটি দেখতে আসবেন হলে। আমি এই সিনেমায় যে কটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছি সবটুকু তো এখন শোনানোর সময় নেই, একটুখানি দুটো কলি গাইবার চেষ্টা করছি। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা, সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে, ভুলো না ভুলো না ভুলো না ভুলো না। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা। সবার আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। মরুনে নিলাম হরি, চোখ লয় দুটি ভ্রমর কাজল কালো, যেন ওই পথ মুখে মানায় ভালো। ও মুখের কাছে কি তাই আর মেনে যায় পূর্ণিমারি খোঁজা করি। পাগল আমি ওরূপ থেকে, মনে লয় ওই রঙ্গ থেকে ওরূপ চুরি করি। আহা মরি মরি চলিতে চলিতে বাজায় কাপড়, বরণে নিলাম ভরি। नमस्कार। भारत की बहादुर बेटियां जिन्होंने वीरता से लड़ी आजादी की जंग, निसंदेह भारत की आधी आबादी, भारत की वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनकी बल, बुद्धि, साहस और शौर्य की कहानियां आज भी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आधी आबादी की भूमिका सर्वोपरि है। भारत की आजादी की वीरांगनाओं ने देश के हर हिस्से में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर योगदान दिया। किसी ने फांसी के फंदे को गले का आभूषण बनाया, किसी ने सोने के सीने में गोली खाकर, किसी ने उम्र कैद हंस के गुजारी, तो किसी ने जहर खाकर ब्रिटिश हुकूमत के हाथ न आने का वादा निभाया। जब जब क्रांति की मसाल ब्रिटिश हुकूमत ने ठंडी करनी चाहिए, भारत की वीरांगनाओं ने आगे बढ़कर उस मसाल को न सिर्फ थामा, अपितु उस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी निभाई। आज हम 21वीं सदी में तरक्की के कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी आए दिन ऐसी खबरें अखबारों की हेडलाइन बनती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चियों की सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनके पंख को काट दिए जाते हैं। महिलाएं अपना भविष्य तलाशने और अनिवार्य शिक्षा हासिल
करने जैसे कई सवालों में अभी भी कई बार हाशिए पर नजर आती है। अपने सपने पूरे करने के लिए अभी भी उन्हें कई सीमाएं पार करनी पड़ती है, कई बेड़ियां तोड़नी पड़ती है, तब जाकर वे अपने सपनों को जी पाती है, अपने सपनों को उड़ान दे पाती है। कितना मुश्किल रहा होगा 18वीं 19वीं सदी का वो दौर जब महिलाओं ने घर की लक्ष्मण रेखा पार करके जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर में महिलाओं की हक की बात कम ही हो पाती थी, लेकिन तब भी इन महिलाओं ने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इतिहास की कहानियों में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। भारत की बहादुर बेटियों ने आजादी की हर लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपना दायित्व बखूबी निभाया। कर्नाटक की रानी चिन्नम्मा उन शासकों में थी जिन्होंने स्वतंत्रता के शुरुआत दौर में ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे किए और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। सन 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई देश की बहादुर महिलाओं की आदर्श है। उन्होंने सन 1857 की क्रांति में महिलाओं को घूंघट और घर की चार दीवारी से बाहर लाकर देश की सुरक्षा की कमान सौंपी। उन्हें न सिर्फ युद्ध कौशल में पारंगत किया, बल्कि शेरनी की तरह दहाड़ना भी सिखाया। अंग्रेजों के विरुद्ध सीमित साधनों में विशाल महिला सेना तैयार करना, वह भी हर तरह के युद्ध में पारंगत, उस दौर में आसान काम नहीं था। जिस सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। सन 1857 में अवध की कमान संभालती बेगम हजरत महल अवध की बुलंद आवाज बनी। बेगम जीनत महल ने भी आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में नई नजीर पेश की। भारत की आजादी में न सिर्फ देश अपितु विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनका शरीर विदेशी था लेकिन आत्मा भारत के लिए जिंदा थी। एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, मेडलिन स्लेट, मीरा बहन जैसी कई महिलाओं ने भारत की आजादी में अहम रोल अदा किया। स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के हर तबके की महिलाओं ने अपनी दहलीज पार करके भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। मैडम भिकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अरुण आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अनुसुईया बाई काले, राजकुमारी अमृत कौर, कनकलता बरुआ, रेहाना तैयब, कल्पना दत्त, नोनी बाला देवी, प्रीति लता वाडेकर, जिन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर अंग्रेजों के हाथ न आने का अपना वादा पूरा किया। आजादी की इन वीरांगनाओं में कई नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए, लेकिन इतिहास कभी मिटती नहीं है। जब भी भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष याद किया जाएगा, भारत की इन बहादुर बेटियों के बलिदान को गर्व से याद किया जाएगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण कुमार। संविधान ने महिलाओं के 16 अधिकार दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में महिलाओं के संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम डिटेल में बताते हैं महिलाओं के 16 अधिकार। महिलाओं को पिता और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपत्ति वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। शादी के बाद भी महिला का यह अधिकार बना रहता है। शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता,
लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का कर्तव्य है। महिला का अधिकार है कि पति उसका भरण पोषण करे। कोई कानूनी प्रावधान है जिसके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने वसीयत बनाई है तो उसके बाद पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगर वसीयत नहीं है तो पत्नी को पति के खुद अर्जित की गई संपत्ति में हिस्सा मिलेगी, पैतृक संपत्ति में नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाकशुदा महिलाओं को पति की पैतृक और विरासत योग्य संपत्ति में भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। कोई भी महिला अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है। महिला उस संपत्ति से बच्चों को बेदखल भी कर सकती है। महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीबी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का हक मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। लिव इन में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिलता है, यानी जब तक वह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है, लेकिन पार्टनर की मौत के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। यदि लिव इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिए संपत्ति लिव इन पार्टनर को लिख दी है तो मृत्यु के बाद संपत्ति पार्टनर को मिल सकती है। यौन शोषण, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौने काम करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने एंटी रेप लॉ बनाया है। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना जाता है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या किसी अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह भी रेप होगा। बलात्कार के मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। वर्क प्लेस पर महिलाओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। यौन शोषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई है। एम्प्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वो यौन शोषण को रोके। यौन शोषण के दायरे में छेड़छाड़, गलत नियम से टच करना, यौन शोषण की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह की आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इस मामले के अलावा कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफिस है कि शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वह मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।
संविधान का अनुच्छेद 42 के तहत महिला सरकारी नौकरी में है या फिर किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है, उसे मैटरनिटी लीव लेने का हक है। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को पूरी सैलरी और भत्ता दिया जाएगा। अगर महिला का एबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपनी नौकरी के दौरान बच्चे के 18 साल होने तक कभी भी 2 साल की छुट्टी ले सकती है। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। महिला की सहमति के बिना उसका एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन एबॉर्शन कराने पर सख्त कानून बनाए गए हैं। कानून के मुताबिक एबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी हो या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो एबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम ना हो तो भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हो और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका एबॉर्शन कराया जाता है तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना को बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून भी कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला को शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर कई चीजें दी जाती है जिसे सत्रीक धन कहते हैं। इस पर लड़की का पूरा हक होता है। इसके अलावा वर वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती है। ये भी स्त्री धन के दायरे में आती है। स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्री धन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी धारा 406 अमानत में खयानत की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्री धन वापस मिल सकता है। पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। महिला को तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। अगर महिलाओं को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा और उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है। गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस का ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो उस जज को चाहिए कि महिला से पूछे कि उसे पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पड़ा। महिलाओं को फ्री लीगल एड दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह भी फ्री कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो लेकिन महिला को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसे फ्री में वकील मुहैया कराई जाए।
पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमेटी से संपर्क करेगी और महिला को गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचित करेगी। लीगल एड कमेटी महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देगी। बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट बनाया था। इसके तहत ऐसे मामलों के संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून के तहत 18 साल के कम उम्र वाले बच्चों, लड़का या लड़की के साथ किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो कानून के तहत अपराध होगा। इसमें पेंट्रेटिव या नॉन पेंट्रेटिव दोनों तरह के एक्ट के लिए सजा का प्रावधान है। बच्चों को अगर किसी भी तरह से सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जिसे पोर्नोग्राफी आदि के जरिए शोषण भी शामिल है, तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता के हिसाब से किया गया है, लेकिन गंभीर मामलों में उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। आपका अपना धन्यवाद, डॉक्टर अरुण कुमार।